نحمد ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار وقال تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل بني آدم خطاؤون وخير الخطائين التوابون أو كما قال عليه الصلاة والسلام محترم بزرگوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بارہا یہ امت کو یہ دعا بتلائی تھی کہ اللہ رجب اور شعبان کی برکتیں عطا فرما، ہم تمام کو رمضان میں پہنچا دے۔ رجب کا مہینہ تو گزر چکا، شعبان ہے، شعبان کے بعد ایک مبارک مہینہ آ رہا ہے، اور اس مبارک مہینے کے متعلق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ آپ رجب ہی سے رمضان کی تیاری میں لگتے۔ تیاری کا مطلب یہ نہیں کہ آدمی پانی نہا دھو کر کپڑے اچھے پہن لے۔ تیاری کا مقصد یہ تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ آپ رجب میں نوافل روزے زیادہ رکھتے تھے، نوافل عبادت زیادہ کرتے تھے، قرآن کثرت سے پڑھتے تھے، اور یہ کب تک رہتا تھا؟ حدیث کے اندر بتلایا گیا کہ 15 شعبان تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ معمول کیا کرتے۔ اس کی تیاری میں رمضان کی تیاری، اور موجودہ طور پر اگر نظر دوڑائی جائے تو آدمی ابھی سے رمضان کی تیاری کس کے اعتبار سے کر رہا ہے؟ کھانے پینے، پہننے، اوڑھنے، بچھونے کے اعتبار سے تیاری کر رہا ہے۔ اور شریعت پر اگر نظر دوڑائی جائے تو شریعت کس طرف جا رہی ہے، اور نبی کا عمل کیا ہم کو کہہ رہا ہے، اور کیا سبق ہم کو ملتا ہے، اس پر امت کو 100% تو نہیں کر سکتے، کم از کم 10% تو کچھ نہ کچھ عمل کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ 10% تو، لیکن 10% بھی بلکہ بولتے ہیں 0 پوائنٹ بھی کام ہمارے پاس ہو نہیں ہے جو نبی کے طریقے کا عمل ہوا کرتا ہے۔ اس لیے امت کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنا عمل بتلایا ہے وہ عمل کرنے کی ضرورت ہے موجودہ دور کے اندر۔ آدمی ابھی رمضان آ رہا ہے، اب رمضان آ رہا ہے تو اس کا پلان بن رہا ہے کہ اب مجھے کیا کرنا ہے، کہ کس روزے میں کیا کھانا ہے، کس روزے میں کیا پہننا ہے، اور کون سی ٹھنڈی مسجد ہے جہاں مجھے آرام کرنا ہے، یہ اس کا ایک پلان بن رہا ہے۔ اور دوسرا ایک پلان بن رہا ہے کہ کس مسجد میں اس کی جلدی تراویح ہو، وہاں سے جلدی سے بھاگ جائے، کوشش کے اندر بھی وہ لگا ہوا ہے۔ اس لیے جہاں نبی کے عمل کو ہم لینا چاہتے ہیں وہاں ہم عاشق رسول ہونے کا دعویٰ بھی تو کرتے ہیں،
तो ज़रा उनको कुछ ना कुछ नबी का ज़ाहिरी तौर पर तो अमल अपनी जिंदगी में आना चाहिए। और शाबान का ये मुबारक महीना है, फजीलतों वाला महीना है, बरकतों वाला महीना है, नूरानी महीना है, नेकियों का महीना है, बुलंद और बाला महीना है। इसकी कदर उम्मत को करनी चाहिए। जहां आदमी नेकी नहीं करता तो गुनाह भी नहीं करना चाहिए। और इस महीने के अंदर ज्यादातर उम्मत को हदीसों, किताबों और कुरान की तमाम आयतों से इतना तो अंदाजा मिलता है कि उम्मत इस महीने के अंदर कम अज कम तो तौबा करे। तौबा का रास्ता आदमी के लिए खुला है, जिसको आयत के अंदर बतलाया गया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा। यहाँ ईमान वालों को मुखातब किया गया है कुरान मजीद में कि ऐ ईमान वालों, अल्लाह से तौबा करो। तो अब यहाँ कोई खानदान नहीं आया। अब यहाँ पर सैयद, शेख, पठान जो भी जात का है वो तमाम इस फहरिस्त के आमनों के फहरिस्त के अंदर दाखिल हो गए कि ऐ ईमान वालों, अल्लाह ताला से सच्ची पक्की तौबा करो। तौबतन नसूहा, नसूहा के माना आते हैं ऐसी सच्ची पक्की तौबा कि उस तौबा के बाद आदमी को ये गुम जहन में नहीं आना चाहिए कि मेरी दुआ कबूल हुई या नहीं। ये नहीं जहन के अंदर आना चाहिए, ऐसी सच्ची तौबा करना है। और हर दुआ के अंदर आदमी को दो चीजें अपने अंदर पैदा करने की जरूरत है। नंबर एक पर है अल्लाह का डर, और दूसरे नंबर पर है अल्लाह से उम्मीद। ये दो चीजें सहाबा इकराम के दरमियान में थी, तो अब ये उम्मत के दरमियान भी आने की जरूरत है। सहाबा इकराम में ये दो चीजें थी जिनकी बुनियाद पर अल्लाह ताला ने रज़ी अल्लाहु अन्हुम और रज़वान का खिताब उनको अता फरमाया कि अल्लाह मुझसे राजी हो गए, अल्लाह ताला से राजी हो गए। अगर उम्मत इसी खौफ और उम्मीद के साथ दुआ और तौबा करेगी, अल्लाह की जात से जरूर उम्मीद है कि अल्लाह ताला भी राजी हो जाएगा, खुश हो जाएगा। तब डर, आदमी को डर कैसे होना चाहिए? जैसे गुनाह करने के बाद उसके अंदर एक जज्बा होना चाहिए कि मैंने एक गलत काम किया, मुझे नहीं करना था, तो हो गया। तो गुनाह के बाद नदामत, ये आदमी के लिए अल्लाह के करीब जाने का जरिया है। और गुनाह पर अकड़ना, गुनाह पर डटे रहना कि अल्लाह ने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा, मैं गुनाह कर रहा हूं, लेकिन एक वक्त ऐसा आएगा कि अल्लाह की लाठी में आवाज नहीं रहती, और जब बिस्तर पर गिर जाता है तो फिर वही बिस्तर पर खिदमत करने वाले भी गालियां देना शुरू करते। तो गुनाह पर अकड़ना नहीं, गुनाह पर चैलेंज नहीं करना, ये आदमी के लिए बड़ा कठिन मसला है। गुनाह पर नदामत आदमी के लिए सबसे अहम जरूरत है, जिसको कुरान मजीद ने बतलाया, इन्नल हसनात युद्हिबुन सय्यात, बेशक नेकियां गुनाहों को मिटा देती हैं। अब गुनाहों के अंदर आदमी जिना करे, शिर्क करे, उसके बाद उसी पर अकड़ रहा है और उसी पर डटकर मुकाबला कर रहा है, तो फिर अल्लाह ताला का अज़ाब भी आ सकता है। आदमी समझता है कि क्या होता है, हमारा कौन क्या बिगाड़ता, आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ता। आप गुनाह करो, आप ब्याज खाओ, आप किसी का धोखाधड़ी से मामला करो, किसी का हक दबाओ, आपका कोई कुछ नहीं करेगा। अल्लाह की जात तो देख रही है ना, वहां तो पकड़ है ना। हाँ, अगर उस पकड़ के अंदर आपको नहीं, हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ता, हम अल्लाह के सामने जवाब देने को तैयार हैं, इतनी ताकत और साथ आपके अंदर है, जवाब दे सकते, तो फिर गुनाह पर गुनाह करते रहे। लेकिन ये अकड़ आदमी के लिए बुरा सबब है
جو اس کو गुनाहगारी के रास्ते पर और जहन्नम के रास्ते पर ले जाने का जरिया। इसलिए गुनाह पर कभी अकड़ना नहीं चाहिए। कभी कभार गुनहगार आदमी नदामत की बुनियाद पर अल्लाह ताला के करीब बन जाता है, करीबी बंदा बन जाता है, क्योंकि नदामत आई, शर्मिंदगी आई। तो इसलिए आदमी को चाहिए, अल्लाह की रहमतें वसी हैं, तब उस वसी रहमत को बंदे को तलाश करना है और तलाश करके अल्लाह ताला से अपनी मग़फ़िरत कराना चाहिए। और आदमी को मरने से पहले पहले ये तौबा कबूल करनी चाहिए, अपनी कबूल कराना चाहिए, मरने के बाद नहीं। हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, इन्नल्लाह अज़्ज़ व जल ला युक़बलु तौबत मा लम यग़रग़र, कि अल्लाह ताला बंदे की तौबा को कबूल फरमाते हैं जब तक कि वो गरगरे की हालत में नहीं आता, उससे पहले पहले तौबा करते, कबूल करते। अब गरगरे की हालत में, अब मौत का डर है, मौत करीब आ गई, खाना भी नहीं, पानी भी नहीं चल रहा, अब बिस्तर पर पड़ा हुआ है, और वैसी हालत में अगर तौबा कर रहा है तो वो काबिल कबूल नहीं है। तो गरगरे की हालत, निज़ा की हालत जिसको बोलते हैं, आखिरी पोजीशन, जहां न डॉक्टरों का बस चलता, न इंसान का बस चलता, सिर्फ अल्लाह का बस चलता है, वहां वैसी हालत में अगर आदमी तौबा कर रहा है तो काबिल कबूल नहीं है। इसकी मिसाल फिरौन ने जब देखा अज़ाब को, बहरे कुलसुम में जब डूब रहा था, तो उस वक्त जब उसको मौत नजर आई तो उस वक्त कहने लगा, आमन्तु बिरब्बि हारून व मूसा, कि मैं अब हारून और मूसा के रब पर ईमान लाता हूँ। तो जिब्रील ने बड़ा चिक्कड़ का बड़ा एक गठरा लेकर उसके मुंह पर मारा है। तो इससे अंदाजा होता है कि यहाँ पर गरगरे की जो हालत है, वो गरगरे की हालत की तौबा काबिल कबूल नहीं है। इसलिए आदमी को चाहिए जिंदगी में या दिन में 100 मरतबा तो गुनाह करे, वो 100 मरतबा तौबा करे। अल्लाह ताला की रहमत वसी है, वो मग़फ़िरत करने के लिए और बख्शिश के लिए तैयार है। अब बंदे को ये चाहिए कि उस तौबा के लिए आगे बढ़ जाए, आगे कदम बढ़ाए। अब आदमी ये समझता है कि मेरी कहां तौबा कबूल होती है, मैं खुद गुनहगार आदमी हूं। ये भी सोचना आदमी के लिए अच्छी बात नहीं। अल्लाह ताला जमीन व आसमान के दरमियान का जितना खला है, खाली हिस्सा है, अगर वो तमाम के तमाम गुनाह से भर दे, आदमी गुनाह से भर दे, इतने गुनाह कर दे, और उसके बाद अल्लाह के दर पर आकर सिर्फ एक मर्तबा कर कह दे कि अल्लाह मैंने बहुत गुनाह किया, अल्लाह मुझे माफ कर, तो अल्लाह ताला इतने जमीन और आसमान के दरमियान के खले को माफ करने के लिए तैयार। अब बंदा एक कदम आगे बढ़ता है तो अल्लाह ताला 2 कदम उसकी तरफ बढ़ते हैं। अब बंदे को चाहिए कि आगे बढ़ना चाहिए ना। तो अभी शाबान का जो महीना है, ये बड़ा बरकतों वाला महीना है। इस महीने के अंदर इंसान के फैसले तय होते हैं कि कहाँ मरेगा, कहाँ जिएगा, क्या खाएगा, हलाल खाएगा, हराम खाएगा, कहाँ मरेगा, कितने लोग मरेंगे, ये तमाम फैसले होते हैं। उस फैसले के लिए या उस नामे अमाल के पेश होने से पहले पहले आदमी को ये चाहिए कि अल्लाह ताला से सच्ची पक्की तौबा करे, और तौबा के बाद ऐसा आज़्म करे कि अल्लाह अब मैं आइंदा कभी कोई गुनाह न करूं। ये अगर कदम आगे बढ़ाएगा, अल्लाह की जात से जरूर उम्मीद है कि अल्लाह ताला उसके गुनाहों को माफ करेंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला मुझे और भी